अच्छा भाई, राम राम। कैसे हालचाल? बढ़िया है सबके? ओके, तो शुरू करते हैं लॉज ऑफ मोशन, जेई लेक्चर नंबर 1। ओके, अब लॉज ऑफ मोशन इसलिए शुरू किया क्योंकि हम काफी अच्छी तरह वाकिफ है लॉज ऑफ मोशन से। हमने अभी खत्म किया चैप्टर को, तो इसके साथ थोड़ा सा वक्त बिता देंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले द आइडिया ऑफ इनर्शिया। You know everything there is to know about laws of motion, so I'll just brush it up. The property of a body to stay in rest or in uniform motion is called inertia, and it depends on the mass of the body. Depends on the mass of the body. And न्यूटन ने कहा कि इनर्शिया तोड़ने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है. So Newton's first law states that a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue in uniform motion unless acted upon by an external unbalanced force. So to break inertia we require an external unbalanced force. Alright, तो वो बॉडी पे लगे तो बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है. Then we come across what is called momentum. न्यूटन के सेकेंड लॉ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है मोमेंटम. एंड व्हाट इज मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी यू कैन सी, एंड ऐसा यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड. न्यूटन का सेकेंड लॉ मोमेंटम के ऊपर है. इट्स ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ मोमेंटम. एंड न्यूटन ने सेकेंड लॉ में यह कहा था कि the time rate of change in momentum is equal to the force applied. So force change in momentum upon time taken. So in terms of average force, you can also write average force F bar is delta P bar by delta T, and when you take delta T tending to 0, you get instantaneous force F bar is dP bar by dt. Well, this is more important than ma. अब तुम लोग क्या, you are used to this. P बार की जगह mv बार लगाओ, मास को बाहर निकालो, dv बार by dt. My God, we know it already. It is acceleration. So F बार is ma बार, ये फोर्स मिल जाता है इक्वेशन फोर्स का. बट मेरे लिए फिर भी F बार इज इक्वल टू ma बार से ज्यादा इंपॉर्टेंट F बार इज dp बार बाई dt है. मैं आज आपको बताऊंगा एक आध दो सम करके जो ma बार से नहीं होंगे. ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 1 न्यूटन यू शुड नो इज 10⁵ डाइन. ओके, सो दिस वाज न्यूटन्स सेकेंड लॉ. एंड इसी आइडिया के साथ जुड़ा हुआ है आइडिया इंपल्स का. यू थिंक आई कैन टेक ऑल दिस ऑफ नाउ? ओके, सो न्यूटन के सेकेंड लॉ के साथ ही जुड़ा हुआ है आइडिया इंपल्स का. एंड व्हाट इज इंपल्स? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and the time duration for which it acts is called impulse. So impulse is force into delta t, and force into delta t is delta p bar. So this is delta p bar. So impulse is also change in momentum. ऐसा unit of impulse, though you might say it is kg meter per second, but I would prefer to write Newton second. Force is in Newton, time is in second, so ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकेंड. इसी के साथ जुड़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ऑल दिस वी हैव बीन देयर डन दैट, तो मैं सिर्फ ब्रश अप कर रहा हूं इस चीज का. इट सेज दैट हमको पता है एफ बार इज dp बार बाई dt, पर अगर एक्सटर्नल रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब dp बार बाई dt भी तो जीरो है. एंड d बाई dt ऑफ व्हाट इज जीरो? Constant. So P bar is constant. In short, in the absence of a resultant external force, the total momentum of the system remains constant, which means that the initial mom of the system is equal to the final mom of the system. We have seen it in Golibari, banduk, goli, recoil of the gun. We have also seen this in many other ideas.
जिसमें बम फटता है एंड यू नो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब यूजुअली जीरो, बॉम्ब स्टेशनरी है, फिर वो फटता है तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग टुकड़े जाते हैं, तो उसमें भी फाइनल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. एंड देन वी सी न्यूटन्स थर्ड लॉ. Newton's third law says that for every action there is an equal and opposite reaction. So न्यूटन का तृतीय नियम which says that action and reaction are equal and opposite, then they act on different bodies. So action and reaction are equal and opposite and they act on different bodies. And this is the prime reason why they say that forces occur in pairs. So that is force on body 1 due to 2 is equal in magnitude but opposite in direction to the force on body 2 due to body 1. So that is we can write F12 bar, force on 1 due to 2 equal in magnitude but opposite in direction to the force on 2 due to 1. You know, in a very simple idea, suppose मैं दीवार को उस तरफ धक्का मारता हूं तो ये मेरा एक्शन है उस तरफ, दीवार मेरे को किस तरफ धक्का मारेगी, इस तरफ, तो वो दीवार का रिएक्शन है इस तरफ. बेस्ट एग्जांपल, मैं धरती पे खड़ा हूं, मैं धरती को किस तरफ वजन दे रहा हूं, नीचे की तरफ, और धरती मेरे को रिएक्शन किस तरफ दे रही है, ऊपर की तरफ. सो मैं जो धरती को दे रहा हूं ये है एक्शन एंड धरती मेरे को जो ऊपर दे रही है यू नो वो है रिएक्शन. एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं और डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं. मैं जो धरती पे मार रहा हूं वो है एक्शन और धरती जो मुझ पे मार रही है वो है रिएक्शन. सो दिस इज ऑल द न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन. बट इसमें खास करके हमको बॉडीज का फोर्स देखना होता है, विच यू ऑलरेडी वेरी वेल नो. आई कैन टेक दिस ऑफ नाउ, चेक इट अप. एनी क्वेश्चंस इन दिस? No questions? Okay. So let's go to the most interesting part of this chapter. Body is on a smooth plane and body is on an inclined plane. I love that like anything. I think the entire mechanics is based on that only. कि तुम किस तरह forces को resolve कर पाते हो या नहीं कर पाते. So body on smooth horizontal plane. हम यहां पे फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे, उस पे लगने वाले फोर्सेस की बात करेंगे. सो सिर्फ रिजॉल्व करना होता है आपको. ये बॉडी है जिसका मास m है, इसका सबसे पहला फोर्स कौन सा बनेगा, वेट, जो किस तरफ बनेगा, डाउनवर्ड्स. सो दिस इज वेट विच इज mg. आई एम श्योर यू नो वी कॉल इट वर्टिकली डाउनवर्ड्स. एंड ये वेट mg के सामने ये तो बॉडी धरती को मार रही है, सरफेस को मार रही है. सरफेस रिएक्शन किस डायरेक्शन में देगा, डू यू अग्री दिस इज योर नॉर्मल फोर्स. ये धरती का रिएक्शन है एंड सरफेस का रिएक्शन है एक्चुअली, एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस. एंड रिमेंबर, फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर बॉडी to be or system to be in equilibrium, it is essential that the vector sum sigma f bar is equal to 0. and sigma f bar में तुम्हारे पास दो होते हैं, fx भी होता है और fy भी होता है. so sigma fx also has to be 0, sigma fy also has to be 0, and if there is an fz, तो fz also has to be 0. This was a body on an inclined plane on a smooth surface. मेरे को काफी लोगों ने पूछा है कि सर एग्जाम में एक्शन रिएक्शन पेयर्स पूछते हैं, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स कैसे डिसाइड करने का. ओके, सिंपल. सपोज ये बॉडी है, आपको एक सीक्रेट बताता हूं.
आपको अगर एक्शन रिएक्शन पेयर्स ढूंढने हैं ना, तो हमेशा देखो कि कितने सरफेसेस कांटेक्ट में है। ये सरफेस है, उसके ऊपर बॉडी है, बॉडी और सरफेस में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? एक ही। कैन यू सी देयर इज ओनली वन सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ओके, एंड एज अ रिजल्ट एक ही एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगी। बॉडी ने सरफेस को जो मारा एक्शन, सरफेस ने बॉडी को जो मारा रिएक्शन। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक थोड़ा वो देता हूं। सपोज ये बॉडी ए है, उसके माथे पे बॉडी बी है। मेरे को अब बताओ कितने एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर्स जनरेट होंगे? कैसे कैसे? अरे टू 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 तो हो गया, कैसे टू? दो सरफेस कांटेक्ट में है, एक ये है जो ए और ये सरफेस है, और दूसरा बी और ए के बीच में सरफेस है। तो अगर कोई मुझसे बोले कि आप इंडिविजुअल डायग्राम बनाओ ए और बी के, तो पहले बी का बनाते हैं, ये बी का, बनाओ एक्शन रिएक्शन पेयर। बी का वजन किसकी ओर जा रहा है? नीचे, है ना? बी अपना वजन नीचे दे रहा है, किसको दे रहा है? ए को। और ए रिएक्शन फोर्स किस तरफ डाल रहा है? बराबर। सो दिस इज द रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, एंड दिस इज वेट ऑफ बी। अच्छा, फॉर बॉडी ए के लिए कौन कौन बनाएगा? बॉडी ए चलवाए, कौन बताएगा मेरे को? बताओ बताओ। ए का वजन किस तरफ होगा? फर्स्ट थिंग, अच्छा अच्छा, ध्यान से, ए का वजन वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। अब ये सरफेस जो है वो किस तरफ रिएक्शन देगी? ऊपर। दिस इज द रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑन बॉडी ए, एंड दूसरा भी तो सरफेस कांटेक्ट में था, वो कहां देगा उसको? समझा? दिस इज रिएक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, रिएक्शन on A due to B, and this is reaction of the floor on A. Do you understand? A पे तीन फोर्सेस है। पहला तो उसका वेट जो नीचे की तरफ जा रहा है, वो तो है ही। दूसरा ये फ्लोर जो उसको नीचे से ऊपर धक्का मार रहा है, और दूसरा बी जो उसको ऊपर से नीचे धक्का मार रहा है। ऑलराइट, सो इस तरह के एक्शन रिएक्शन पेयर आप जनरेट कर सकते हो अपने हिसाब से। कितनी सरफेसेस कांटेक्ट में है उस हिसाब से ये बनेगा। ओके, सो दिस वाज द आइडिया। एनी इश्यूज? एक और दूं आपको ऐसा करने के लिए? एक और लोगे कि नहीं लोगे? लोगे? ओके, मैं तीन वाला दूं आपको बना के? तीन वाला ट्राई करोगे? तीन वाले के साथ? ओके, इसको उड़ा देते हैं, तीन वाला देते हैं। फिर आप मेरे को बताओ किस तरह के एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है। आई होप आपकी बुक खुली हुई है। बुक खुली हुई है? चलो, अच्छा है। मैं चाहता हूं आप ए, बी और सी तीनों के एक्शन रिएक्शन पेयर बनाओ। मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं। जो वीडियो देख रहे हैं वो उसको पॉज करके इसका डायग्राम बनाए, फिर अपने आगे बढ़ेंगे उसमें। ओके, मैं पहले सी का बनाऊंगा। भाई सी पे
ये रहा सी, कौन से फोर्स लगेंगे? पहला तो सी का वेट किस तरफ, नीचे की तरफ, दिस इज वेट ऑफ सी, एंड ये सी बी को वजन दे रहा है, बी सी को किस तरफ देगा रिएक्शन, ऊपर, दिस इज रिएक्शन, लेट्स कॉल इट 1 N1, ओके, रिएक्शन ऑफ बी ऑन सी। अब बी का बनाओ, मजा आएगा बी का बना के, आहा जालिम। चल बी का वजन किस तरफ है जी, सर नीचे ही होगा। अच्छा, बी पे ये बी अपना वजन ए को दे रहा है, ए का रिएक्शन किस तरफ होगा, ऊपर, लेट्स कॉल इट N2, और सी किस तरफ देगा, ए उसको N1 ऊपर दे रहा है, तो सी N1 किस तरफ देगा, नीचे। डू यू अंडरस्टैंड द डायग्राम्स पीपल, कोई शक? एंड फाइनली ए का, अभी जगह की तंगी है इसलिए इधर जिगजैग बना रहा हूं मैं। अच्छा भाई ए पे, भाई ए का वजन, वेरी गुड। अच्छा, सरफेस ए को किस तरफ मारेगी, तो इसको हम बताते हैं N3, एंड बी ए को किस तरफ मारेगा, ए ने बी किस तरफ मारा, ऊपर, तो बी ए को किस तरफ मारेगा, नीचे। इज दिस अग्रीएबल टोटली? पीके पीके ऊपर नीचे नहीं हो रहा ना कुछ? पता नहीं आज पीके का माइक क्लियर नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रही हो, क्या बोल रही पीके? टुडे पीके इज inaudible. Is this agreeable? Absolutely, no doubts whatsoever. That's PK. जितनी सरफेस इस कांटेक्ट में है उतने एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन पेयर्स बनेंगे। तो यहां पे आपने देखा कि ये एक, ये दो और ये तीन सरफेस इस कांटेक्ट में है, तो तीन अलग अलग डायग्राम हमने बनाए, इतने एक्शन रिएक्शन पेयर्स जनरेट होंगे। ओके, सो दिस इज द आइडिया। फिर जाते हैं बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। आई लव द इंक्लाइन प्लेन, आई एम श्योर यू ऑल आर वेल वर्स्ड विद द आइडिया ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन। ये इंक्लाइन प्लेन बनाऊंगा मैं, एंड उस पे लगने वाले फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। बस सबसे इंपॉर्टेंट ये है, दिस एन प्लेन इंक्लाइन एट द एंगल थीटा एंड दिस द बॉडी ऑफ मास m। हम स्टार्टिंग वाली फोर्सेस बना रहे हैं। सबसे पहले mg किस तरफ, माय गॉड। ओके, अब ये बॉडी अगर मोशन करेगा तो इट विल मूव अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया। सो एक नया x और एक नया y बना रहे हैं, एंड दिस यू नो इज थीटा, आई डोंट हैव टू डिराइव दैट, राइट? तो ये हो गया mg cos थीटा और ये हो गया, भाई किसी को mg cos थीटा mg sin थीटा में कोई झोल है तो बताओ मेरे से, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो? ओके भाई, नॉर्मल किस तरफ, माय गॉड, लवली, बराबर। और फिर फ्रिक्शन विक्शन आता है वगैरह, वो तो अलग बात है, आज फ्रिक्शन नहीं छेड़ रहे। ओके, दिस इज द आइडिया ऑफ अ ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। फिर बात करते हैं टेंशन की। हमारे आज के कार्यक्रम में टेंशन वगैरह भी है। जब मैंने कोई स्ट्रिंग लूजली लटकाई है तो देयर इज नो एक्चुअली टाइटनेस इन द स्ट्रिंग, पर जब मैं इसके नीचे कोई बॉडी लटकाता हूं मास m का, तो mg की वजह से एक नया फोर्स डेवलप हो जाता है स्ट्रिंग में, विच इज कॉल्ड टेंशन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन दैट आई शो। सो दिस इज टेंशन T, एंड टेंशन T दिखाने के दो तरीके हैं, दो ऑप्शंस है। पहला, वी शो इट ऑपोजिट टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। सेकंड, वेरी गुड, सही बंदा है, एकदम फर्स्ट क्लास। तो दो ऑप्शंस है, पहला
either you show tension opposite to the deforming force, or second, if there is no deforming force and you are in a quandary कि किस तरफ बनाओ, तो you show it in such a way as to make the system tight. Okay, so this was the idea of tension. और फिर हम बात करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की. आज फ्रिक्शन के अलावा बहुत सारी चीजें और देख ली हमने, और इसके सबके न्यूमेरिकल्स हमको आज सॉल्व करने. You know, an accelerated or decelerated frame of reference is called a non-inertial frame. So, या तो acceleration में हो, accelerated, या decelerated frame of reference. और इसमें एक नया फोर्स आ जाता है which is called pseudo force. Why do we call it a pseudo force? Because ये फोर्स एक्चुअली कोई लगा नहीं रहा है, ये सिर्फ फ्रेम के बदल जाने से ये फोर्स आप पे लगा. एंड हमको डायग्राम में, जब हम फोर्स डायग्राम बनाते हैं किसी भी बॉडी का, तो अचानक से अगर वो फोर्स लगता है तो हमको वो बनाना है. सपोज ये बॉडी बड़ा है, यू नो, इस बस में, एंड बस मूव कर रही है एक्सीलरेशन ए के साथ, तो इस पे सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में बनाया जाएगा? Opposite to the direction of acceleration, and this force will be made acting on the body. So Fp is same as mass into acceleration. So pseudo force Fp is always made in a direction opposite to the direction of acceleration, and force की वैल्यू वही ma, कोई चेंज नहीं. तो हम यही कहते हैं ए इस तरफ है तो मां किस तरफ होगी? इस तरफ. अच्छा, ए इस तरफ है तो मां किस तरफ होगी? नीचे की तरफ. ओके, सो ये सारे आइडियाज हम आज इस्तेमाल करेंगे. एंड और कुछ बचा? अच्छा भाई, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिस्टम है, बस तुमको फोर्स डायग्राम बनाना आना चाहिए. कुछ कुछ में टिप्स भी है. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं टिप्स को उठा रहा हूं. सर टिप्स बोले तो सपोज मेरे पास दो बॉडीज कांटेक्ट में है, बॉडी 1 और बॉडी 2, और मैं मार रहा हूं फोर्स F. सबसे पहली बात, व्हाट विल बी द टोटल एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम? इजंट इट फोर्स अपॉन टोटल मास? सो दिस इज F ओवर m1 प्लस m2. एंड तुमसे ये पूछे 2 पे कितना फोर्स लगा, तो फोर्स ऑन बॉडी 2 F2, मास कितना है बॉडी 2 का? m2 इंटू एक्सीलरेशन A. ऐसा ही कुछ मैंने आपके लिए निकाला है स्ट्रिंग के मामले में. यू नो, स्ट्रिंग का मामला बहुत बढ़िया होता है. अरे मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है. फॉर एग्जाम्पल, एक और टिप, ये पुली है भाई, फ्रिक्शनलेस पुली देखने मिलेंगे यूजुअली, और ये मास m1 है, बहुते देखा होगा आपने, और ये मास m2 है. कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा, बरोबर है ना? सपोज ये m1 भारी है, लेट m1 ग्रेटर देन m2, तो बॉडी किस तरफ जाएगा श्रीमान? m1 किस तरफ जाएगा और m2 कहां जाएगा? फिर हम m1 का डायग्राम बनाएंगे. अच्छा, अगर एक ही डोरी पास हो रही है तो डोरी में टेंशन होगा T, सेम टेंशन. ओके, और फिर डायग्राम बनाएंगे, न जाने क्या क्या करेंगे वगैरह. इतना सब धंधे से बचने का सिंपल एक उपाय है. मेरे पास एक सिंपल फॉर्मूला है. एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम इज A इज m1 माइनस m2 over m1 plus m2 the whole into g. सीधा सस्ता इक्वेशन. एक्सीलरेशन इज m1 minus m2 over m1 plus m2 the whole into g. और अगर तुमसे कोई बोले अच्छा टेंशन निकाल के बताओ, तो t is 2 m1 m2 over m1 plus m2 into g. मेरे को किसी ने एक बार पूछा था, सर ये याद रखने का? ऐसा जरूरी नहीं है. आपको अगर कॉन्फिडेंट महसूस होता है तो आप m1 का डायग्राम बना सकते हो, टेंशन का इक्वेशन निकाला, m2 का डायग्राम बना सकते हो, उसका इक्वेशन निकाला, दोनों को इक्वेट करके काम कर सकते हो. बिल्कुल
वही करते करते मैंने ये दो इक्वेशन लाया है, कोई बहुत बड़ी बात। अच्छा, आपको ऐसा एक करना है, मैं आपको एक कराता हूं। एसपी है या एग्जांपल है, एसपी 11 में एकदम सुंदर और सस्ता दो, अगर आप देख रहे हैं पुली है, एसपी 11 देखा आपने, निकाला क्या? बहुत बड़ा मास हो गया, इतना बड़ा मास अच्छा नहीं होता। कितने मास हैं? ये m/2 है और ये m है, और तुमसे क्या बोले, टू masses m/2 and m are joined together by means of a light inextensible string passing over a frictionless pulley. When the bigger mass is released, the acceleration, the smaller mass with ascend an acceleration of, तुमको acceleration find करना है। कोई इक्वेशन है आपके पास? यहां पे m1 कितना है, m, भाई एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, ये नीचे जाएगा ना, और ये कहां जाएगा, ऊपर। सो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। भाई यहां पे m1 कितना है, बड़ा m, m2 कितना है, m/2। कोई फाइंड कर रहा है या मैं करूं? Anybody? Sorry? Can't hear nothing. M minus m/2 over m plus m/2 the whole into g. M minus m/2 is m/2. M plus m/2 is 3m/2 the whole into g. By m/2 cut. So acceleration is g by 3. You can check the answer please. Okay? Yes, sir. अच्छा, यहां पे भले पूछा नहीं है, पर अगर आपसे पूछा हो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो क्या कीजिएगा? आंसर लाइए जरा। कोई ला रहा है आंसर? फॉर्मूला ये रहा, एकदम सस्ते में निपटाएला सम। आंसर लाके बताओ मेरे को। कोई ला रहा है? ला रहा क्या मारा? कितना? बात है कोई लाया बापू? सही आंसर है 2mg/3, बिल्कुल अफलातून आंसर है। शैल आई टेक दिस ऑफ नाउ? ओके, आई एम स्टार्टिंग टू मूव न्यूमेरिकल्स। मैं कर रहा हूं SP5। आई एम श्योर यू कैन ओपन योर बुक्स नाउ, अरिहंत मास्टर रिसोर्स बुक। आई होप आप सब लोगों के पास है। So the first sum, SP5, what does it say? It says a block of metal weighing 2 kg, so mass is 2 kg, is resting on a frictionless plane. Okay, it is struck by a jet releasing water at the rate of 1 kg per second. So dm by dt, mass upon time, is 1 kg per second, with a speed of 5 meter per second. Okay, the initial acceleration of the block is, ऑलराइट, सिंपल है। सबसे पहले फंडा समझ में आया, ये ब्लॉक है 2 किलो का और उस पे पानी का फवारा छूट रहा है, फुस, ये जाएगा आगे, बराबर। अब ये वाटर है, जेट ऑफ वाटर, पानी की पिचकारी। सर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए फोर्स का होना जरूरी है, पर फोर्स तो दिया नहीं है। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ dp by dt का बहुत ही सुंदर इस्तेमाल करने वाला हूं। डू यू अग्री? फोर्स F is dp by dt
एंड P इज व्हाट, mv। हमने हमेशा m को बाहर निकाला है, dv बाई dt एक्सेलरेशन कर दिया, इस बार v को बाहर निकाल रहा हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, डिड यू सी दिस, d बाई dt ऑफ mv, इसमें स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड को मैंने बाहर निकाल दिया, dm बाई dt ये रहा 1 kg पर सेकेंड। वाह वाह वाह। एज अ रिजल्ट फोर्स का वैल्यू क्या मिला, वेलोसिटी कितना 5 एंड dm बाई dt कितना 1, तो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है मेरे भाई। एंड नाउ फोर्स तो आपको पता है मां होती है भाई, मास किसका, ब्लॉक का, तो 5 न्यूटन इज 2 इंटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज 5/2 या 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखा, फोर्स ना दिया हो तब ऐसा कुछ करके आप फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज SP5, देन वी आर डूइंग SP6। SP6 उसी लेवल का फंडा। क्या कहता है SP6, द मोमेंटम ऑफ अ ब्लॉक एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज P bar is 10 t square I cap plus 5 t j cap kg meter per second. You need to find out the force acting on the body on the block at t equal to 2 second. Okay, no problem sir. भाई न्यूटन का सेकेंड लॉ, ये सब न्यूटन के सेकेंड लॉ के ऊपर है। आपको पता है ना, F bar is dp bar by dt. So d by dt of how much is P bar? I hope somebody is doing with me यार। सबसे पहले बंटवारा होगा और बंटवारे में 10 बाहर आ जाएगा, 10 d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, आई कैप तो अपेंडिक्स है, रहता है सबके साथ, 5 d बाई डी टी ऑफ टी जे कैप, d बाई डी टी टी स्क्वायर 2t। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना बेटा। d बाई डी टी ऑफ टी 1, सो F बार न्यूटन, न्यूटन पर कुछ टाइम भी दिया है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बात चली है। सो F बार इज 20 इंटू 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप विच इज 40 आई कैप प्लस 5 जे कैप न्यूटन। इज समवन चेकिंग द आंसर, इज इट देयर? यस सर। ओके, SP11 हमने किया। SP12 मस्त है, SP12 आई कैन टेक दिस नाउ। ओके, SP12 भी एक बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल। एक इंक्लाइंड प्लेन है और 2 या 3 मास है, ऐसा कुछ है, पर घबराने का नहीं, क्योंकि चाहे जो भी हो, कंसेप्ट जिसका स्ट्रांग है, लॉज ऑफ मोशन उसके हाथ में। ओके, ऐसा कुछ प्लेन दिखाई दिया है मुझे, और ये 60 है, भले उन्होंने मेंशन नहीं किया, बट दिस इज 90 एंड दिस इज 30 एंड देयर इज अ पुली आउट हियर, दिस इज अ पुली, और कुछ मासेस है, ये B है, ये A है, और यहां पे कहीं पे C है। ओके, आई कैन सी। अब डेटा ले लेते हैं। as shown in the figure, A, B and C are, अच्छा, mass of A is 1 kg, mass of B कितना है 3 kg and mass of C कितना है 2 kg respectively. एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम मंगे जी को कुछ लेने का, कुछ नहीं लेने का, तंबूरा लेने का। ओके जी, मतलब ये 3 किलो है, ये 1 किलो है, ये 2 किलो है। सबसे पहले तो नक्की करो कौन कहां जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा या ये वाला ऊपर जाएगा, सी वाला। ये 4 किलो है, ये नीचे जाएगा, ये 2 किलो है, ये ऊपर जाएगा, ऐसा हमारा एस्टिमेट है। तो इसको किया है नीचे, इसको किया है ऊपर,
अब पहले इसके डायग्राम बनाते हैं सी के। आओ तो सी लू, सी लू नहीं हो तो पी लू होता ना, तो सी लू थोड़ी होता। अच्छा भाई सी का बना रहे ला भाई, सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम होगा। हमको टेंशन नहीं बोला इसलिए ज्यादा टेंशन लेने का नहीं बाबा। भाई चलो ये क्या होगा, मास ऑफ सी इंटू जी। ये कितना होगा, अरे कॉस थीटा और एन का कोई जरूरत नहीं इसलिए मैंने नहीं बनाया। एम सी जी साइन 30। भाई टेंशन किस तरफ, इस तरफ टेंशन, ये कहां जा रहा है ऊपर, तो मां कहां होगी बंधु। भाई आप तो मां को याद ही नहीं कर रहे हो यार। एनीबॉडी गिविंग मी इक्वेशन फॉर टेंशन as system is in equilibrium so sigma f bar is 0। इसमें नहीं लिखोगे चलेगा, ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। मेरे को इक्वेशन कौन देने वाला है, मेरा इक्वेशन देने का बेस्ट फंडा कौन होता है पता है, आर्य जानी। क्या इक्वेशन देता, क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आर्य जानी हाजिर हो। लेकिन डायग्राम नहीं दिख रहा है सर, ब्लर है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन तुझे डायग्राम भी दिखेगा और तू मुझे इक्वेशन भी बताएगा, वो दिन आएगा। कुशल, कुशल है ना तू, कुशल है कि वत्सल है, कुशल। तेरे को तो आता होगा, किसी को पकड़ते, रुक किसी की तो पकड़ते हैं। जैसे ही मैं बोलता हूं किसी को पकड़ते, पब्लिक इधर उधर होना शुरू हो जाए। अरे यशवी, ये यशवी है ना, हर्षा पटेल। यशवी जाग रही है क्या, अच्छा नहीं तो किसी और को पकड़ता है। अरे हेतस्वी है क्या, यस सर। वेरी गुड, आई लव व्हेन समबडी सेज यस सर। आप मेरे को ये इक्वेशन बताएं एक्स वाला। Yes, sir. MC into A plus MC into G sin 30 minus T is equal to 0. खुश कर दिया तूने, मेरे को खुश ही कर दिया एकदम। सो अब तो आपको ये सब इक्वेशन आते हैं, तो यू कैन सेफली से T इज इक्वल टू एम सी ए प्लस एम सी जी साइन 30, है ना, एम सी ए प्लस एम सी जी। आई होप इट इज नॉट टू मच। अब फॉर ब्लॉक ए एंड बी, फॉर ब्लॉक्स वो दोनों साथ में ही है ए एंड बी, तो उसका डायग्राम संगे संगे बनेगा। आप चाहो तो ए और बी को साथ में ही ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 3 4 किलो वाला फंडा ले सकते हो आप। तो ये होगा एम ए प्लस एम बी इंटू जी, और ये होगा, इसको उड़ाया जाए, एम ए प्लस एम बी इंटू जी साइन 60। ये रही दोरी, और यह है दोरी में टेंशन। ये कहां जा रहा था, नीचे, तो मां कहां होगी श्रीमानो, एम ए प्लस एम बी इंटू ए। कोई इक्वेशन बता रहे, चल कुशल तू खुश हो जा, चल कुशल ऑफलाइन हो गया लगता है कोई जो इक्वेशन बताएगा मेरे को। MA plus MB G sin 60 minus MA plus MB into A minus T is equals to 0। अगर कोई दिक्कत ना हो तो इस तरह लिख दूं, T प्लस एम ए प्लस एम बी इंटू ए इज एम ए प्लस एम बी इंटू जी साइन 60, और ये इन दोनों को वो साइड लेके जाते हुए T इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी इंटू जी साइन 60 माइनस एम ए प्लस एम बी इंटू ए। इक्वेशन 1 और 2 दोनों ही टेंशन के हैं,
और दोनों को इक्वेट किया जाए तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। शुड आई डू इट या यू आर डूइंग इट? इन दोनों को इक्वेट करोगे आप? यस सर। हाँ, आई गिव यू 1 मिनट। जो लोग देख रहे पॉज कर दो इसको। तो आंसर आ चुका है, हमने 1 और 2 को इक्वेट करके ये किया है एंड आंसर करीबन 4.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास। यू कैन सी दिस, ऑलराइट, सो दैट्स हाउ वी डू इट। शैल आई टेक दिस ऑफ नाउ? आई एम ऑन टू नंबर एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 देख रहे हैं, वो काफी हद तक आपके एनसीईआरटी बुक के इलस्ट्रेशन जैसा ही था, है बस थोड़ा सा अलग। और फंडा चाहे जो भी हो, हमको अंदाजा आता ही है कि किस तरह उसको यूज करना है। सो लेट अस स्टार्ट मूविंग। Example 4, it says, okay, what does it say? Gives you a diagram, okay. यहां एक रिजिड सपोर्ट है, यहां दूसरा रिजिड सपोर्ट है, और एक डोरी ऐसी है और एक डोरी ऐसी है, और यहां से कोई मास लटक रहा है, ओके। ये मास है m, ऑलराइट। ये पॉइंट P है। This, let us say this is point A and let us say this is point B. They have given us the angle also. This is 30. Okay. What do they say? A mass M is hung with a light inextensible string as shown. Find the tension in the horizontal string. This is the horizontal string. Let us say tension in this is T. तो अपने को T find करना है। कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे? डायग्राम बना ले। सबसे पहले ये मास m है, तो इसका वेट कितना होगा? शाबाश। एंड दूसरी बात, लेट अस से इधर का टेंशन है T1। डू यू अग्री? इस टेंशन के दो कंपोनेंट लिए जाएंगे, ये 30 है तो ये भी 30 है। दिस विल बी T1 cos 30, दिस विल बी T1 sin 30। Alright, so this is T1 cos 30 and this is T1 sin 30, और ये जो T है वो इस तरफ होगा। पूरा डायग्राम बन चुका है, मैं इस स्ट्रिंग को तवज्जो दे ही नहीं रहा हूं, छोड़ जाने दो उसको। डू यू सी T1 sin 30 इस तरफ है, वो किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। एंड T1 cos 30 जो इस तरफ है वो किसको बैलेंस कर रहा है? T को। सो हियर as system is in equilibrium, so sigma f bar is 0, अर्थात T1 sin 30 is balancing mg and T1 cos 30 is balancing T। वाओ भाई, हमको T में इंटरेस्ट है, so shall we divide 1 and 2? Dividing 1 into T1 sin 30 over T1 cos 30। भाई sin 30 किसको बैलेंस कर रहा है? mg and this is T। भाई T1 गियो है, sin by cos tan। मुझे तो T चाहिए, तो T ऊपर चढ़ गया, tan 30 नीचे आ गया। भाई एनीबॉडी टेलिंग मी व्हाट इज tan 30? 1/√3। माय गॉड, तो ये 1/√3 में से √3 चढ़ गया ऊपर, और T की वैल्यू मुझे मिल गई √3 mg। कैन यू सी दैट? कैन यू चेक द आंसर? इज इट देयर? यस सर, सही जवाब। अच्छा, मैं राउंड 2 का 90 करने जा रहा हूं। अच्छा, एक छोटा सा राउंड 1 का 5 करने जा रहा हूं। राउंड 1 का 5 सस्ता है, सस्ते वाले को पहले उठाने का। अच्छा, राउंड 1 का 5 क्या? बॉडी ऑफ मास 0.05 kg, तो मास इज 0.05 kg is observed to fall with an acceleration of 9.5
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गिर रही है हवा में. द अपोजिंग फोर्स ऑन ऑफ एयर ऑन द बॉडी इज, जी को 9.8 लेना है भाई. बॉडी का डायग्राम बनो, ये बॉडी है, इसका मास m है, वेट किस तरफ होगा, mg, एंड इट इज फॉलिंग विथ एन एक्सीलरेशन a, गिर रही है. तो मां कहां होगी बंधु, मां माय गॉड. तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, F dash, which is due to air, is it in mg minus ma? This is m g minus a. मास कितना है बेटा, मास 0.05, g की वैल्यू 9.8, a की वैल्यू 9.5, 9.8 minus 9.5, वांदा निकल बताना. So this is 5 into 10 raised to minus 2 into 3 into 10 raised to minus 1. 5 3s are 15 into 10 raised to minus 3. I was always afraid of 10 raised to minus 3s. So this is 0.015 Newton. Is somebody checking? क्या 0.015 न्यूटन सही जवाब है क्या? बिल्कुल सही जवाब है. एंड उसी के पीछे नंबर 9 कर रहा हूं, राउंड 1 का 9. आप इसको देख लो, कोई शक इसमें? No, sir. No, sir. ओके, राउंड 1 का 9. अ मैन वॉन्ट्स टू स्लाइड डाउन अ रोप. अच्छा, तो ये डोरी है और इस पे से बंदे को स्लाइड करने का, नीचे उतरने का बाबूजी. हाँ. द ब्रेकिंग लोड फॉर द रोप, सो द मैक्सिमम टेंशन T max is 2/3 of the weight of the man. ओके, तो with what acceleration should, it is written what minimum acceleration, minimum नहीं maximum acceleration should the man slide down. ओके, तो भाई इसका फोर्स डायग्राम बनाया जाए. भाई mg किस तरफ है, नीचे. मां किस तरफ है, ऊपर, बराबर. और टेंशन किस तरफ है. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द इक्वेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करना. सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो T plus ma is mg. T plus ma is equal to mg. So how much is ma? Isn't it mg minus t? And how much is t? Isn't it 2/3 of the weight? Weight कितना होता है mg? भाई mg minus 2/3 mg. भाई 1 minus 2/3 कितना होता है, 1/3 होता ना बाबूजी. म कट गया, ए बच गया, g by 3. Can you check the answer? G by 3 is the right answer. Yes, it is the right answer. अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक अच्छा सम मेरे हाथ में आया. राउंड 1 का 15 बोलता है, राउंड 1 का 15 क्या कहता है, अ बैग ऑफ सैंड ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ रोप. अच्छा, ये सैंड बैग है, ये मास m है, लटक रहा है स्ट्रिंग से. अ बुलेट ऑफ मास m by 20, ये ना बुलेट ये बुलेट है, और कितना मास है m by 20, इज फायर्ड विद अ स्पीड v. ये मुझे क्या ऐसा याद आ रहा है, ऐसा कुछ कल भी देखा था हमने. एंड फिर उसमें घुस जाती है सैंड की बैग में. Composite system. माय गॉड टू मच है. कंपोजिट सिस्टम. सो फाइनली कितनी स्पीड हो जाएगी वो देखना है. दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर. ओके, सबसे पहले भाई दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन इफेक्ट. सबसे पहले व्हाट इज द इनिशियल मॉम ऑफ द सिस्टम.
डू यू अग्री इनिशियल में दो चीजें हैं, एक तो बुलेट है और एक बैग है, इसको इंग्लिश में बैग कहते हैं, बैग। तो मॉम ऑफ बैग प्लस मॉम ऑफ बुलेट। भाई बैग का मोमेंटम, बैग का मास कितना m, पर उसका वेलोसिटी कितना है 0। बुलेट का मास कितना m/20 एंड बुलेट की वेलोसिटी कितनी है v। तो तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम कितना आया mv/20। और अब फाइनल में, फाइनल मॉम, अम्मी जान, इजंट इट टोटल मास, कितना टोटल मास है, बैग का मास कितना m, बुलेट का मास कितना m/20, तो m प्लस m/20 द होल इनटू स्पीड कितनी है v डैश। अच्छा m प्लस m/20 कितना होता है सर, 20 प्लस 1, 21 m/20 इंटू v डैश। भाई इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, नो। सो एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, डू यू एग्री इनिशियल मॉम इज इक्वल टू फाइनल मॉम। तो मैं इसको उड़ा रहा हूं फायरमैन को, फायरमैन as initial mom is equal to final mom as there ain't no external force. So initial mom is equal to final mom. by initial mom कितना mv/20, फाइनल मॉम कितना 21/20 m इंटू वी डैश। m को काटा, 20 को काटा, तो कितना बचा v डैश इज v/21। इज देयर समवन चेकिंग इट, इज देयर v/21 द राइट आंसर? यस सर, वी आर गुड। मैं राउंड 1 का ही 90 करने जा रहा हूं, आप इसको देख लो, मैं उड़ा देता हूं। मेरे पास 5 मिनट है, इसमें मैं राउंड 1 का 90 और राउंड 2 का 5 एटलीस्ट कर लूं, मेरी ऐसी इच्छाएं हैं। ओके ऑलराइट, राउंड 2 का कौन सा नंबर बोल रहे हैं? माय गॉड, क्या मेमोरी है तेरी है, सॉलिड, क्या बादाम बादाम खाता लगता। ओके जेंटलमैन, सॉरी, राउंड 1 का 90 लिया। तू भी क्या बात करता है, पहले 90 रहने का फिर 5 रहने का। भाई इंक्लाइन प्लेन आ गया है, आपकी अटेंशन, ये 30, यहां पे एक बॉडी है जिसका मास m है और एक ठो डोरी है और एक ठो पुली है और ये बेचारा लटक रहा है। कितना लटक रहा है ये? 2m लटक रहा है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, two blocks of masses m and 2m are connected with a light inextensible string passing over a frictionless pulley. The mass m is placed on a smooth inclined plane of inclination 30. 2m hangs vertically. If system is released, blocks move with an acceleration. भाई एक्सेलरेशन चाहिए। भाई पहले तो नक्की करो कौन कहां जाएगा। ये 2m कहां जाएगा? नीचे। और ये कहां जाएगा? माय गॉड, तो इसको नाम 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं। फॉर 1, फॉर ब्लॉक 1, जरा फाटाफाटी, हाँ अपने को तमा धमी मचानी है, टाइम मिल रहा है। ओके सबसे पहला वेट किस तरफ? 2mg। भाई टेंशन सेम ही दोहरी है, टेंशन सेम होगा। ये t, एक्सीलरेशन किस तरफ है? नीचे, तो मां कहां होगी बंधुजन? ऊपर। t को थोड़ा इधर खिसका देते हैं, 2 मां। ओके इक्वेशन बताएगा कौन? एज सिस्टम, अरे 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 सर इसे अभी तो छोड़ दो, हाँ छोड़ देता हूं बेटा। तो इक्वेशन क्या है? t प्लस 2ma इज इक्वल टू 2mg। तो तेरा t का इक्वेशन क्या आया? मुझे तो फाइनली t को आइसोलेट करना है, 2mg माइनस 2ma, इक्वेशन नंबर 1। अब ब्लॉक 1 की बारी है, ब्लॉक 2 की बारी। फॉर ब्लॉक 2 संभाल, क्या इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन के साथ मस्करी नहीं।
सबके साथ मस्खरी करना, इंक्लाइन प्लेन के साथ नहीं करना भाई। सबसे पहला ये ठो दूरी है, mg किस तरफ, और मैं कॉस नहीं बना रहा हूं क्योंकि फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस में यूजुअली मैं कॉस नहीं बनाता। ये है mg sin 30, टेंशन ये रहा, एंड ये किस तरफ जा रहा था, ऊपर। तो माता जी कहां होंगी, मां जी। और सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने की वजह से तुम्हारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, चतुर। T इज ma प्लस mg sin 30। भाई लेट अस रॉक एंड रोल। ये भी t इक्वेट कर दूं। भाई तुम लोग हाँ ही नहीं बोल रहे हो। तुम चाहते हो ना कि मैं इक्वेट करूं, मां प्लस ए साइन 30 को हाफ ले लूं। थैंक यू। भले तुमने हाफ बोला नहीं पर मैंने ले लिया। ये माइनस 2 माह को इधर ले आओ, तो माह प्लस 2 माह कितनी माह, 3 माह। एंड 2mg माइनस mg बाई 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1, यार तुम लोग बोलते नहीं हो। मुझे एक्सेलरेशन मिला g/2, क्या वो वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है श्रीमान। Yes, sir. Options. माय गॉड। भाई किसी ने आपको अगर टेंशन फाइंड करने को बोला होता तो डू यू थिंक आप फाइंड कर पाते? इस एक्सेलरेशन को उठा के इसमें डाल दिया, टेंशन मिल जाएगा आपको। Yes, sir. शाबाश। मैं उड़ा रहा हूं, मेरे को लास्ट सम करने का राउंड 2 का 5। आप इसको देख रहे हो ना, वेरी गुड। देख लिया देख लिया देख लिया, गया राउंड 2 का 5। मस्त सम, लास्ट की 2 मिनट। विक्रम बेताल जैसा है, तूने मुंह खोला और मैं गया। राउंड 2 का 5, मस्ती की पाठशाला। ओके, कुछ तो डायग्राम आ गया है। ये वो है, ये पुल्ली रहने का, और यहां से एक मास लटक रहा है। ये 4 किलो का मास है, और इसके नीचे एक ठो डोरी और है, और ये यहां पे फिर से रिजिड सपोर्ट। ओके, इस डोरी में टेंशन है T1, और यहां से एक और लटक रहा है, और ये है 6 किलो। ओके, और ये दोनों डोरियों में टेंशन है T। अच्छा, का कहित रहीन, 2 bodies 4 kg and 6 kg are attached to the ends of a string passing through a frictionless pulley. Okay, the 4 kg mass is attached to the table by a string. The tension in this string is, इसमें T1 वाला फाइंड करने का है। ओके भाई, कौन शुरू करवाएगा? सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को, सिस्टम कहां जाएगा? सबसे $1 million क्वेश्चन। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये डोरी बांधी हुई नजर आ रही है। ये 4 किलो से ये डोरी यहां बांधी हुई नजर आ रही है। तो डोरी बांधने के बाद क्या सिस्टम हिलेगा क्या? हिल सिस्टम नहीं हिलेगा। तो सिस्टम में एक्सीलरेशन गलती से मत डालना। ये नहीं होती ना तो ये 6 kg नीचे जाता, बात अलग है, पर तो सम ही अलग हो जाता। पर ये डोरी बांधने की वजह से सिस्टम, द सिस्टम विल नॉट मूव। $1 million। तो सबसे पहले 6 किलो के लिए बनाते हैं डायग्राम। भाई एकदम मस्त। वेट किस तरफ? नीचे की तरफ 6g। टेंशन किस तरफ? T है। और यहां पे एक्सीलरेशन ना होने से मां के भी होने का कोई चांस नहीं है। तो यहां के इक्वेशन क्या मिलेगा हमको? वेरी गुड, वेरी गुड। हु इज दैट फीमेल? वेरी गुड हेतश्री, यू आर डूइंग वेरी नाइस। अब मेरे को 4 किलो का डायग्राम बनाए। सबसे खतरनाक चीज लेडीज एंड जेंटलमैन, गलती से मिस्टेक हो गई ना, गलती से गाना मत गाना, यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक। भाई यहां ये डोरी में टेंशन है T, नीचे वाली डोरी में टेंशन है T1। अब पहली बात,
इसका मास कितना है? 4 किलो। वेट किस तरफ होगा जी? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। माय गॉड, क्या हुआ? ये तस्वीर क्या खा के आई आज? कुछ नहीं सर। कुछ तो खाया है, चूरन बीरन कुछ खाया है तूने? या तेरे पे आज न्यू इच्छा हो रही है पढ़ने की इसीलिए। वाह 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 वाह, ऐसी इच्छाएं रोज होती रहे, हमारी दुआएं तेरे साथ। न्यूटन का आशीर्वाद है आज तुझ पे। भाई ये टेंशन का डायरेक्शन कहाँ? ऊपर सिस्टम को टाइट रखने का है। ये टेंशन का डायरेक्शन कहाँ? डाउनवर्ड। भाई अगर सब कुछ हो ही गया तो मुझे इक्वेशन भी बता ही दो। इक्वल्स टू T1 प्लस mg। वाह वाह, 4G। ये कौन था? आर्या। आर्या। शाबाश आर्या। तो T इज इक्वल टू T1 प्लस 4G। लेडीज एंड जेंटलमैन, जेंटलमैन की आवाज ही नहीं आ रही है। ये भी T है, ये भी T है, दोनों को इक्वेट कर दूं 1 और 2 को, तो शायद जिंदगी सफल हो पाए। T1 प्लस 4G इज इक्वल टू 6G। तो T1 कितना? जी। 20 न्यूटन। एंड G की वैल्यू 9.8 बोलता है, तो 2 इंटू 9.8। 9.6 न्यूटन। माय गॉड माय गॉड, लवली। काफी काफी आज ग्राउंड कवर कर लिया हमने। एंड बस जाने से पहले सिर्फ 1 मिनट, मैं आपको सम नंबर 20 के दर्शन बस करा ही दूं। बस मेरे अंदर से आज हेतस्वी को पढ़ने की इच्छा हो रही है, मेरे को भी आज पढ़ाने की इच्छा हो रही है। ये देख लिया, उड़ा दूं इसको? मैं सिर्फ इतना उड़ाऊंगा। एक बम फट रहा है। भाई अपने आसपास मत देखो, आपने आपके आसपास नहीं फट रहा है, ये टेक्स्ट बुक में फट रहा है। बम का मास है 5 किलो और इनिशियली स्टेशनरी है। बम तो स्टेशनरी होता है, उसके बाद वो 3 टुकड़ों में फटता है जिसका मास 1:1:3 है। तो M1 is 1 kg, M2 is 2 kg and M3 is 3 kg. The two parts having same mass move in perpendicular directions with velocity 39 meter per second. Perpendicular मतलब एक x में जाने देते हैं, एक y में जाने देते हैं। तो V1 bar is 39 I cap meter per second, V2 bar is 39 J cap meter per second. What do you want? The velocity of the bigger part is V3 bar चाहिए। भाई सबसे पहले what is the initial mom of bomb? बॉम्ब की मां मतलब इनिशियल बॉम्ब। डू यू अग्री बॉम्ब इज स्टेशनरी? एंड फाइनल बॉम्ब भाई 3 टुकड़े भये, तो P1 बार प्लस P2 बार प्लस P3 बार, P1 बार M1 V1 बार, P2 बार M2 V2 बार, P3 बार M3 V3 बार। डू यू अग्री? मैं सब कुछ इक्वेट कर सकता हूं। मेरे पास M1 है, ये रहा, V1 बार है, ये रहा, M2 ये रहा। 1 किलो ही है क्या? तुम भी 1:1:3 है। सो M2 ये रहा, V2 बार ये रहा, M3 ये रहा, V3 बार फाइंड करने का। यू अग्री यू कैन इक्वेट इनिशियल एंड फाइनल मॉम? क्या सर पता नहीं चल रहा है क्या करें? एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, सो मोमेंटम इज कांस्टेंट। ये गया दूसरा। सर ऐसे कुछ वो वर्कशीट में भी था ना। बिल्कुल पी के, मैं वही सोच रहा हूं कि अब तक तूने बोला कैसे नहीं। कल ही किया था हमने ऐसा कुछ। इनिशियल मॉम इज फाइनल मॉम। इनिशियल मॉम कितना? 0। फाइनल में M1 कितना? 1 किलो, V1 बार 39 I कैप, M2 बार कितना? 1 किलो 39 J कैप एंड M3 बार 3 किलो। वाओ, तो 3V3 बार इज -39 I कैप -39 J कैप। 3 से डिवाइड करो, 13 3 जा। वाह, क्या उन्होंने वेक्टर फॉर्म मांगा है? नहीं, मैग्नीट्यूड मांगा है। मैग्नीट्यूड मॉड V3 बार। भाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना तो आसान, -13 का स्क्वायर -13 का स्क्वायर 13√2 मीटर पर सेकेंड। है जो कोई देख रहा हो? ऑप्शन है? भाई मैं तो कहता हूं C हो या D, सानू की। आंसर तो आ गया C।
बराबर है। तो इसी आंसर आने की खुशी में हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंजॉय योरसेल्फ। एंड द टैगलाइन, 2 टैगलाइन होती है अपनी, कीप वॉकिंग एंड स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, स्टे नेगेटिव। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।